Hello students, back to Science 2 lecture. Today we will see the next part of our chapter number 8, Useful and Harmful Microbes. In this lecture we are going to see the topics of antibiotics and harmful microbes. So after watching this video we will be able to realize what are the harmful effects of microorganisms and what care should be taken while consuming certain food items. Now before starting today's topic, let us do a quick recap that how is rhizobium helpful to farmers. Now in the previous lecture we have learned about a useful microorganism called as rhizobium, which is also a symbiotic bacteria. Alright. Now rhizobium has helped the farmers by reducing the use of chemical fertilizers and its adverse effect. It has also helped the farmers by reducing the expenses on fertilizers, right? So it has been a great benefit for the farmers since their expenses has been reduced, the use of chemical fertilizers has been reduced, and the crops which are being grown using the bacteria rhizobium are very healthier as compared to those which were grown using the chemical fertilizers, right? Then what is the method of asexual reproduction is yeast. Now even this we have studied that the method of asexual reproduction which is being done by yeast is called as budding, right? Now today we are going to learn a topic called as antibiotics. Now what are antibiotics? Antibiotics are carbon compound which are obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms which are called as antibiotics. Okay, antibiotics are what? They are the carbon compounds which are obtained from some bacteria and fungi. Okay, the carbon compounds which are obtained from some bacteria and fungi are called as antibiotics. Now why these antibiotics are useful? They help us to destroy the growth of any harmful microorganism. Okay, so antibiotics were first discovered in the 20th century only, and because of this discovery it has brought a great revolution in the field of medicine, right? Even like a disease, tuberculosis. Okay, tuberculosis is a disease which have been completely eradicated from some countries by using the antibiotics. Now what this antibiotics does exactly? It helps to act, it is acting mainly against bacteria and also against some protozoas. Okay, because of some bacteria disease are being caused in any human being, right? Now what does these antibiotics does? These antibiotics destroy those harmful bacteria or some protozoas which are causing that disease. Okay, because they destroy it, then the disease has been prevented, right? So this is the work of an antibiotic. Now children, you must have heard the word of antibiotic. Whenever a person is sick, he goes to a doctor, right? So doctors usually prescribe some antibiotics which help, these medicines help us in destroying the harmful growth which is taking place in the body. These antibiotics destroy them and hence the disease is cured. Okay, so there are these antibiotics are of two types. Okay, antibiotics can mainly be divided or mainly be recognized in two types. First is broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics. Now let us first see what is broad spectrum antibiotics. Now broad spectrum antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. This type of antibiotics are useful against a large amount of bacteria. Okay. Now when these antibiotics are used, broad spectrum antibiotics are used when the pathogen cannot be identified. Now who is the pathogen? Pathogen is the one which causes the disease. Okay, पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज कॉज करता है, जिसके वजह से कोई बीमारी होती है, उसे क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है, जो कैरियर होता है, ठीक है? तो ऐसे पैथोजन जब आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, ऑल दो सिम्टम्स आर विजिबल, जब सिम्टम्स दिख रहे, जैसे कि किसी इंसान को, किसी पर्सन को फॉर एग्जाम्पल
मलेरिया हुआ है, ओके, तो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके, नाउ लेट अस नॉट से मलेरिया, एक कोई डिजीज़ हुई है, ठीक है, एक कोई बीमारी हुई है जिसके सिम्टम्स है, उसे फीवर आ रहा है, उससे कोल्ड हुआ है, ही इज़ कंटिन्यूसली कफिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्हें फीवर, टेम्परेचर बहुत हाई है बॉडी का, फीवर है बहुत ज़्यादा, कफिंग हो रही है कंटिन्यूसली, स्नीजिंग हो रही है कंटिन्यूसली, ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस वजह से हुआ है वो नहीं पता है हमें, किस पैथोजन की वजह से हुआ वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है अगर कोई इंसान को, तो तभी डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं, एग्जाम्पल इज एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन और टेट्रासाइक्लिन। नाउ चिल्ड्रन, ये आपको कैसे पता चलेगा, जो दवाई का जो रैपर होता है, मोस्टली जब डॉक्टर्स जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जो हम मेडिसिन जब हम केमिस्ट से परचेस करते हैं, तो आप अगर उसके पीछे देखोगे तो वहाँ पर मेनली अगर एंटीबायोटिक दी है डॉक्टर ने, तो उसमें ये वाले फॉर्मूला लिखा हुआ होता है कि ये वाले मेडिसिन में एम्पिसिलिन है या फिर एमॉक्सिलिन है, तो वो वहाँ पर उसके कंटेंट में लिखा हुआ होता है। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो मेडिसिन है ये क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। जब एंटीबायोटिक, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कब दी जाती है पेशेंट को, जब पैथोजन आइडेंटिफाई नहीं हो, ऑलराइट, सिम्टम्स विजिबल है लेकिन पैथोजन का पता नहीं हो, किस वजह से वो बीमारी हुई है, अगर वो नहीं पता हो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, ऑलराइट। सी here, if in this picture you can see clearly, see it's written ampicillin, right? Here it's clearly mentioned ampicillin capsules, that is of 500 mg. See here amoxicillin capsule which are of 250 mg, right? Then here we have tetracyclines. So these are what? These are broad spectrum antibiotics which are being prescribed when the pathogen cannot be identified even though the symptoms are visible. Alright. Now the next type is narrow spectrum antibiotics. When the pathogen is definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. When the pathogen is definitely known, मतलब जब हमें पता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारी हुई है, तब कौन सी मेडिसिन, तब कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करी जाती है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में डिफरेंस ये है, देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम कब देते हैं, जब हमें पैथोजन के बारे में पता ही नहीं है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ हुई है, ठीक है। तो जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, जब हम वो कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी के अंदर जितने भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनफैक्ट वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का जो कंटेंट है वो उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है, कि कौन सा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में और कौन सा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट बॉडी में। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए डॉक्टर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कम प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी करते हैं इन दैट केस ओनली व्हेन द पैथोजन इज नॉट कन्फर्म, ओके। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इसके डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, व्हेन द पैथोजन इज डेफिनेटली नोन, जब पता है डॉक्टर की कि इसी पैथोजन की वजह से ये डिजीज़ हुई है, ये बीमारी हुई है पेशेंट को, ठीक है, जब डॉक्टर को क्लियरली पता है कि यही पैथोजन की वजह से हुई है, तो डॉक्टर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है। तो ये एंटीबायोटिक्स मतलब मेनली उसी बैक्टीरिया को, उसी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगी और कोई भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो ये डिफरेंस है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। नाउ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओके। सी दिस टाइप ऑफ मेडिसिन इट इज, जैसे पेनिसिलिन की ऐसी टैबलेट्स होती है, एरिथ्रोमाइसिन उस पर लिखा होता है, फिर जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन, ठीक है, जेंटामाइसिन का इंजेक्शन है। तो ये मेडिसिन क्योर उसी चीज़ को, मतलब एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, उस जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिस्ट्रॉय करना। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होती है वो
मेनली जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जो पर्टिकुलर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ उसे ही डिस्ट्रॉय करेगा, राइट. नाउ आई होप दिस टॉपिक इज बीन क्लियर that the two types of antibiotics, that is broad spectrum and narrow spectrum. Now let us study about penicillin. Now what is penicillin, children? It is a narrow spectrum antibiotic, right? Now Alexander Fleming discovered penicillin. So he is the person behind the discovery of penicillin. His name is Alexander Fleming. Okay. Now a group of antibiotics obtained from the fungus Penicillium is used to control infections caused by bacteria like Staphylococcus or Clostridium. Okay, so पेनिसिलियम एक फंगस है, ठीक है. पेनिसिलियम एक फंगस है जिसमें से पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है. सो पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज. उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं जो फंगस से ऑब्टेन किया जाता है. इस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम है. और ये यूज कब किया जाता है? इट इज यूज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन which is caused by a particular bacteria called as Staphylococcus or Clostridia, okay, और Streptococcus. okay, ये 3 टाइप के बैक्टीरिया है, Staphylococcus, Clostridia और Streptococcus. ये तीनों टाइप को बैक्टीरिया, इनसे जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है उसे कंट्रोल करने के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स यूज करी जाती है. ओके. Now it is used to treat infections of ear, nose, throat and also pneumonia and scarlet fever. तो ये डिफरेंट टाइप के डिजीजेज है विच इज़ कॉल्ड एज निमोनिया और स्कारलेट फीवर. अगर ये किसी इंसान को होती, किसी पर्सन अगर निमोनिया से सफ़र कर रहा है तो उसे कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी जाती है, पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करी जाती है. ऑलराइट. या फिर अगर ईयर इन्फेक्शन हुआ है, नोज इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उन सारे इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करी जाती है थ्रू डॉक्टर. ओके. नाउ देर आर सम स्टेप्स विच हैज़ टू बी फॉलोड बिफोर टेकिंग एनी एंटीबायोटिक. ओके. और यू कैन से we should the cautions which should be taken. Okay, what care should be taken? So antibiotics should be taken only when prescribed by a doctor. Yes children, very important, very necessary. अगर हमें पता है कि इस एंटीबायोटिक से ये ठीक होता है, then to never ever take antibiotics from our own unless and until it has been prescribed by the doctor. Then only you have to consume that antibiotic. अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता है कि चलो ठीक है पेनिसिलिन से निमोनिया क्योर होता है या फिर ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन क्योर हो सकता है, तो आप जाकर पेनिसिलिन परचेस करके या फिर किसी को रेकमेंड कर दो कि पेनिसिलिन वाली एंटीबायोटिक्स आपको कंज्यूम करना है. नो, नेवर डू दैट. इट इज़ वेरी वेरी रिस्की or you can say it is very hazardous that a person can get any different type of disease. okay, या फिर उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है, जो सिम्टम्स विजिबल हो वो ही उस डिजीज़ का सिम्टम्स हो, राइट. तो नेवर एवर टेक antibiotics without doctor's prescription. If doctor has prescribed that, then you can take that antibiotic. all right. Even for common disease like cold and throat infection, do not take it on your own. As I already said that आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये कॉमन कोल्ड और कफ हुआ है या फिर इन्फेक्शन हो गया है कोई, तो ये वाली एंटीबायोटिक्स परचेस करके खा लेना चाहिए. यू शुड नॉट डू दैट unless and until it has been prescribed by doctor, then you take it. If it is not prescribed by the doctor, डॉक्टर ने आपको नहीं लिख कर दिए वो एंटीबायोटिक, तो आपको वो परचेस नहीं करना है, वो एंटीबायोटिक कंज्यूम नहीं करना है. ऑलराइट. Complete the full course suggested by the doctor. Okay. Do not suggest antibiotics to others which were useful to you. Right. Now, don't consume antibiotics first of all on your own to treat common disease. राइट. एज आई सेड कि अपने मर्जी से खुद एंटीबायोटिक्स खरीद कर नहीं खाना चाहिए खुद को, ठीक है. देन आपको अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है एंटीबायोटिक, ठीक है, आप वो कंज्यूम कर रहे हो, आप वो टाइम टू टाइम ले रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली फील
अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक होने लगेगी, राइट। सो इफ़ यू आर फीलिंग वेल बिफोर कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब, डॉक्टर है सेट कि 3 दिन ही आपको दवाई खानी है, तो आपको वो 3 दिन खानी ही है। ऑल्दो अगर पहले दिन खाने के बाद आपको तबीयत ठीक लगने लगी है तो आप बंद कर दोगे खाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्स को पूरा कंप्लीट करना होता है, जितने दिन डॉक्टर ने खाने बोला है उतने दिन ही खाना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर 3 डेज बोला है तो 3 डेज कंप्लीट करो वो कोर्स, अगर 2 डेज बोला है तो 2 डेज कंप्लीट करो। 3 डेज बोला है और फिर आप 4-5 दिन तक खा रहे हो तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, और 3 डेज बोला है और 2 दिन खाकर छोड़ दिया तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने दिन का कोर्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा है उतने दिन एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए, उतने दिन का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस दवा से आपको फ़ायदा हुआ है वो दवा किसी और को भी सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको उससे फ़ायदा हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को भी उस मेडिसिन से फ़ायदा हो जाए, ठीक है। सो नेवर एवर सजेस्ट एनी एंटीबायोटिक विच वर यूजफुल टू यू टू एनीवन एल्स, ओके। Now, as I said, the next topic is harmful microorganism. Now, till now we were learning about useful microorganism. Now, let us study about some harmful microorganism. So, microorganisms that causes disease in other organisms are harmful microorganisms, right? जिस microorganism से किसी दूसरे microorganism में भी disease cause हो रही है उसे क्या कहा जाएगा? harmful microorganisms, right? And most of them are parasitic in nature. ओके, दे आर लाइक पैरासाइट्स, राइट। तो पैरासिटिक होते हैं मोस्टली। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेचर क्या है? दे आर पैरासिटिक इन नेचर। नाउ व्हाट हैपेंस टू लेदर बैग्स ड्यूरिंग रेनी सीजन? नाउ दिस, व्हाट इज दिस? लेदर बैग्स, ये है लेदर का एक बैग है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये ग्रीनिश स्पॉट्स देख रहे हो, ये आपने मोस्टली रेनी सीजन के टाइम पे ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे ग्रीनिश स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? Now, when there is sufficient moisture, microspores of fungi penetrate deep into the leather items or gunny bags. Okay. Now, who is causing this? These are, a species of fungus. Fungus, you can say. They are a type of fungi. अब फंगाई कब ग्रो होता है? जब उसे प्रॉपर सफिशिएंट मॉइस्चर मिलता है, तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं फंजाई के वो ग्रो होने लगते हैं उस सरफेस पे जहाँ पर उसे सफिशिएंट मॉइस्चर प्रोवाइड हो रहा है। Alright, now they obtain nutrition and they reproduce from that only, from that host only they take the nutrition and they start to reproduce, okay. This causes the materials to wear and become weak. As a result, the material does not last long, right? So similarly fungal growth can be seen in jams and pickles. अब ये तो मैंने एक आपको मटेरियल के बारे में बता दिया, ठीक है, कि मटेरियल में ऐसा होता है, राइट। लेकिन ये फंगल ग्रोथ आपने कभी कभी फूड आइटम्स में भी नोटिस करी होगी, जैम्स में या फिर पिकल में। मेनली रेनी सीजन के टाइम पे मॉइस्चर की वजह से ऊपर का जो सरफेस होता है वहाँ पर फंगल ग्रोथ होने लगती है, राइट। सी हियर यू कैन सी इट इज़ दिस टाइप ऑफ फंगल ग्रोथ। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फंगस यहाँ पर ग्रो गए, बट इस टाइप के फंगस ग्रो होने लगते हैं। Alright, now while they use up the nutrients from these food items, they release mycotoxins. It makes the food poisonous. Now the fungus has been penetrated over certain surface. Alright, fungus ने वहाँ पर अपने रहने की जगह बना ली है, let us say that. वो उस फूड आइटम से न्यूट्रिशन भी ले रहा है, वहाँ पर रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेने के टाइम पे जब वो न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं फूड आइटम्स का, तो कुछ रिलीज करता है, ठीक है। वो फंगस भी कोई सब्सटेंस रिलीज करता है, तो ये जो सब्सटेंस फंगस रिलीज कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? माइकोटॉक्सिन्स कहा जाता है। और माइकोटॉक्सिन्स की वजह से जो भी फूड आइटम है वो क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है। इफ अ पर्सन इज ईटिंग दैट पॉइजन फूड, ही इज गोइंग टू गेट सिक, राइट। सो अ टाइप ऑफ like now various species of fungi grow on different type of food items, okay, and as I said they use the nutrients of this food item for their growth and reproduction, right. Now when these food items becomes poisonous, that food items cannot be eaten, all right. Now one type of or you can say one harmful microorganism which we are going to see in today's lecture is Clostridium. Now what is Clostridium? So it is a bacteria which spoils the cooked food.
बना हुआ जो खाना होता है उसे वो स्पॉइल करता है, राइट. So this type of bacteria lives in the soil and also in alimentary canal of humans and animals. Now see children, there are various different species of this bacteria. Clostridium की बहुत सारी, I guess around 100 different species है इस bacteria की. Okay, now out of these species, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. Okay, now these they mainly live in anaerobic condition. That means अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं भी हुआ, then to this bacteria can survive without oxygen. Okay, actually student what it is, अनएरोबिक कंडीशंस में अगर वो ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब अगर एनारोबिक कंडीशन हुई मतलब ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हुआ, तो ये वाले बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. जब एनारोबिक जब ऑक्सीजन लेवल लो होता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे जब बहुत ज़्यादा कम होता है, तब उस जगह पर ये वाले बैक्टीरियाज ग्रो होने लगते हैं. ऑलराइट, नाउ वी विल गोइंग टू लर्न in depth about this bacteria in our next lecture. Now let us check for an understanding for today's lecture that which bacteria spoils cooked food. So just now we have studied it is Clostridium, right? And why do leather items do not last long? Why? Because if there is sufficient moisture, fungi attack on these materials and causes it to wear and become weak. Just 5 minutes back exactly I guess I have explained you this. So it's very easy. Now this is your worksheet number 3. So you have to solve this worksheet in your Science 2 notebook. Okay. Then we are going to see the last topic of this chapter in our next lecture. Thank you.